sorry. دیسی موویز کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ دوستو، آج ہم کسی روایتی کمرشل فلم کا ذکر نہیں کریں گے، نہ ہی کسی ایسی فلم کا جو کسی سپر اسٹار کی وجہ سے یاد رکھی جاتی ہے یا جس کے گیتوں نے ہر ایک کو جھومنے پر مجبور کیا، یا پھر جس میں دھماکہ خیز ایکشن، فائٹ اور رقص تھے اور اس فلم نے باکس آفس پر نوٹوں کے انبار لگا دیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہماری آج کی فلم میں۔ ہاں، اگر کچھ ہے تو بس سچ، سچائی اور تلخ حقیقت۔ یہ لوگ پتہ ہے کون ہے جو مجھے ایسے کمنٹس کر رہے ہیں؟ جو ایسے لوگ، وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو رات کو گندے کام بھی کرتے ہیں، مجرے بھی دیکھ لیتے ہیں، بڑکے بھی لگا لیتے ہیں شور شرابہ کر کے، تو صبح جب جلوس نکلتا ہے نا تو اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مل کے کہیں گے کنجر خانہ بند کرو، کنجر خانہ بند کرو۔ ہمارے معاشرے کا بدبودار چہرہ، ایک تاریک باب جس پر کچھ نوجوانوں نے کیمرہ آن، لائٹ آن اور ایکشن کا زوردار نعرہ لگا کر روشنی ڈالی ہے۔ ذکر کریں گے ہم ریئل اسٹوری فلم شو گرلز آف پاکستان کا۔ دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا کے جدید ذرائع جو ہمیں حاصل ہیں، ہم ان کا استعمال کریں تو جہاں تفریحی لوازمات یا انفارمیشن کا دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہم بندوبست کریں، وہیں ایسے کام بھی کرتے رہیں جن میں معاشرتی مسائل، خامیوں اور برائیوں کی نشاندہی ہو۔ اسی نقطہ کے پیش نظر ہماری آج کی فلم شو گرلز آف پاکستان بنائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو دیسی موویز کے دوستوں کو بتا دیں کہ ہماری آج کی فلم فیچر فلم نہیں ہے، آپ اسے دستاویزی فلم کہہ سکتے ہیں، لیکن فلم میکرز کی خواہش تھی کہ اسے سینما گھروں کی زینت بنایا جائے، لیکن پاکستان سے دوری کے باعث وہ شاید اس حقیقت سے آشنا نہیں تھے کہ پاکستانی سینما اور فلم بینوں کی اکثریت 75 سال میں بھی بلند سوچ خود میں پیدا نہیں کر سکی ہے، بچکانہ سوچ مسلط ہے۔ شو گرلز آف پاکستان پر گفتگو کرنے سے قبل حسب سابق اس فلم کی تیاری میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے یا اس کے بنیادی افراد کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیتے چلیں۔ مارننگ شو میں بیٹھ کے ہیپی ٹو یو کیا جائے تو وہ گندا نہیں ہے، وہ کرے تو وہ پرفارمنس ہے، ہم کرے تو مجرا ہے۔ جسامن، اس فلم کی کہانی سعد خان نے تحریر کی ہے، وہ اس فلم کے فلم ساز بھی ہیں اور ہدایت کار بھی۔ فلم سازی کے شعبے میں ان کے ساتھ انم عباس بھی ہیں، جبکہ انم عباس اس فلم کی ڈائریکٹر آف سینماٹوگرافر بھی ہیں، جبکہ ایڈیٹر ہیں جوئی شریکی، ساؤنڈ سینماٹوگرافی عبداللہ حارث۔ یہ دیکھیں نا میرے ہاتھ، چوڑیاں توڑتی ہوں روز، پاؤں کی تلیے پھٹ گئی ہیں ڈانس کرتے ہو، یہ ولگر ہے۔ شو گرلز آف پاکستان اگرچہ ڈاکومنٹری فلم ہے، لیکن اسے دیکھنے کے بعد 100% نقاد اسے ڈاکومنٹری سے 2 قدم اور فیچر فلم سے 4 قدم آگے اور آگے کی کاوش قرار دیں گے۔ ماضی میں فیچر فلم کے لیے اس طرح کا کیمرہ ورک
اسکرین پلے جاوید جبار کی فلم مسافر اور AJ کاردار کی فلم جاگو ہوا سویرا میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ فلمیں اور شو گرلز آف پاکستان دیوانوں کا خواب تھیں، جنہوں نے اندھوں کے شہر میں آئینے فروخت کرنے کی کوشش کی۔ ممکن ہے ہماری اس رائے سے اتفاق نہ کیا جائے، مگر ٹیم شو گرلز آف پاکستان کی حوصلہ افزائی کے لیے کم از کم ہم یہ کوشش ضرور کریں گے کہ اس کی کاوش کو سراہا جائے، اور جن دوستوں نے اس قابل تعریف بلکہ چونکا دینے والی حقیقت کو نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں، اور دل میں ضرور سعد خان، انم عباس اور دیگر کی صلاحیتوں کی ضرور تعریف کریں۔ مفتی صاحب بحیثیت مسلمان ہونے کے اخلاقی اقدار جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے کبھی ڈرامہ دیکھا ہے؟ یہ فلم اسٹیج سے وابستہ 3 فنکاروں کی حقیقی زندگی سے متعلق ہے۔ ان میں ایک ٹرانسجینڈر ہے جسے ہمارے معاشرے میں خسرا، ہیجڑا، چھکا جیسے القابات سے نوازا جاتا ہے، اور اردو میں اسے تمیز کے ساتھ خواجہ سرا کہتے ہیں۔ جی آفرین بات کر رہی ہوں، بولیں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کس سے نمبر لیا آپ نے؟ اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں شو پہ ہوں، تیار ہو رہی ہوں، جلدی جلدی بات کریں۔ نہیں جی میں نے نہیں پہچانا، اگر میں نے آپ کو پہچانا ہوتا تو میں آپ سے ضرور صحیح طرح بات کرتی۔ فلم کے آغاز میں مجرے کی تاریخ پر چند جملے ہیں، وہ سنیے۔ 500 سال قبل مغلیہ سلطنت میں مجرے کے فن کا آغاز ہوا۔ 19ویں صدی میں انگریز حکومت نے اس شاہی رقص کو قدامت پسند قوانین پاس کر کے جسم فروشی سے منسلک کیا۔ جب سلطنتوں نے ہاتھ بدلا، مجرے رقاصوں نے اپنے آپ کو معاشرے کے کنارے پایا۔ یہ کہانیاں آج کی تاریخ میں اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والی کچھ مجرے رقاصوں کی ہیں۔ جی ان جملوں کی تمہید کے بعد بادشاہوں کے دربار سے نکل کر بازاروں اور گلیوں تک پہنچنے والے مجرے کی داستان 3 کرداروں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس عمل میں فلم کے رائٹر کا کام کہانی بیان کرنے سے زیادہ اسے اسکرین پلے اور شارٹ ڈویژن کے ذریعے مکمل کرنے میں زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ کہانی کے واقعات تو خود بخود کیمرے کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ فلم بندی کے بعد ان واقعات کی چھانٹی، ان میں سے فائدہ مند مناظر کو نکالنا اور ایڈیٹنگ کی ٹیبل جو اب کمپیوٹر اسکرین کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے، ان مناظر کو ترتیب سے جوڑنا تاکہ بیان کردہ کہانی دیکھنے میں بوریت پیدا نہ کرے، انتہائی عرق ریزی کا کام ہے۔ بس آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے یہ بات سن لیں کہ اگر معاشرے کے شرفا کو اپنے قلم سے بے نقاب کرنے والے عظیم کہانی نویس سعادت حسن منٹو کے ہاتھ میں فلم کیمرہ تھما دیا جاتا تو وہ بھی اسی طرح فلم بندی کر کے اس بدبودار معاشرے کے نام نہاد شرفا کو ننگا کر دیتے، جیسا کہ سعد خان اور انم عباس نے کیا ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ پھر بیمار ہونے لگ پڑے، ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے بولا کہ ان کو برین کینسر ہے، اللہ معاف کرے۔ کرایہ گھر کا جو ہے وہ آگے کہاں سے ہونا، کھانا کہاں سے بننا، یہ نہیں ہمیں پتا تھا، کوئی رشتہ دار کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ پھر میں نے فیصلہ لیا چپ کر کے پاپا میرے نہیں مانے تھے، مگر پھر بھی امی میرے ساتھ تھی تو میں گھر چھوڑ کے ادھر لاہور آ گئی کام کرنے کے لیے۔ شو گرلز آف پاکستان کا پس منظر پنجاب ہے۔ پاکستان میں لاہور وہ شہر ہے جہاں گزشتہ 30 سال سے اسٹیج کو انتہائی عروج اور مقبولیت حاصل ہے۔ 3000 روپے کا ٹکٹ بھی شائقین لائن میں لگ کر خریدتے ہیں۔ کسی زمانے میں لاہور اسٹیج کی شناخت اس کی شائستگی، بامانی اسکرپٹ، اصلاحی مکالمے، عمدہ اداکاری اور مضبوط ڈائریکشن ہوا کرتی تھی۔
अब ये तमाम खसूसियात नापेद हो चुकी हैं। आज वही ड्रामा कामयाब करार दिया जाता है जिसमें सबसे ज्यादा बेहुदा मुकालमे हों, भड़कते रक्स, रक्कासाएं नाजेबा इशारों से और चंद कदम आगे बढ़कर कपड़े उतारकर शायकीन पर फेंक दें और उन्हें कुर्सियों पर उछलने पर मजबूर कर दें, वही कामयाब अदाकारा है। आफरीन खान भी इसी कबील की अदाकारा है। इस स्टेज फनकारा की कहानी से फिल्म का आगाज होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरे पारे पारे से फैंस? क्या हो रहा है? कहाँ कर ले हो शाले? लाइफ कैसी गुजर रही है मेरे फैंस की? और क्या नई ताज़ी है माय डियर स्वीट हार्ट फैंस? आफरीन बेग की कहानी में कई माशरती पहलू नुमाया किए गए हैं। जब स्टेज फनकारा मोबाइल चैट के जरिए अपने मद्दाहों से गुफ्तगू करती दिखाई देती है, लाखों उसके फॉलोवर्स हैं। आफरीन के लिए दौरान सफर या किसी भी मकाम पर सिक्योरिटी मामलात से निमटना इंतहाई आसान है। अपनी अवामी मकबूलियत की बिना पर वो किसी तलाशी के बगैर इन मकामात से निकल जाती है। आफरीन का रक्स देखने के लिए लोग कतार लगाकर टिकट हासिल करते हैं। आफरीन के गाने पर झूमने वाले अपने घर के ड्राइंग रूम में डीवीडी पर उसके बेहुदा रक्स देखकर अपने जज्बात की आग बुझाने वाले, सियासतदान शुरफा मीडिया के सामने अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए आफरीन समेत तमाम स्टेज फनकारों पर बेहयाई आम करने के इल्जामात लगाते हैं। आफरीन कहती है कि अंधेरे में इन सब के चेहरे हमारे सामने बेनकाब हो चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुद शरीफ लड़कियों को नचवाता है, वो बेहयाई नहीं। हम नाच लें तो मुआशरा खतरे में पड़ जाता है। मेरी आंटी की बेटियां 8 माशाल्लाह, सारे नाराज हुए में कि जी साडे खानदान दे विच असीं चदरां ला ला मर गए हैं, ठीक है, मस्जिदां जा जा मर गए हैं, ते इन्हें जेड़ा है ड्रामिया च काम करके साड़ी इज्जत खराब करती है। मैंने अपनी कजनों से बात की कि तुम लोग तो पढ़ी लिखी हो, न्यू जनरेशन की हो, ठीक है, मैंने कहा तुम लोगों को तो ये बातें समझनी चाहिए कि आजकल लड़की को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। वो घरेलू लड़कियों वाला दौर चला गया है, उन्होंने बेचारियों का विआह हो जाते हैं, फिर अगे जाके वो किस्मत चंगी होई तो होई, नहीं तो बंदा दूजा विआह करके बह जाता है, मार कुटाई होंदी है, फिर तलाक हो जाती है। इस फिल्म में जगह जगह लैला नरगिस, अंजुमन शहजादी समेत स्टेज से वाबिस्ता मारूफ फनकारों के न्यूज क्लिप्स, इंटरव्यूज क्लिप्स भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें ये फनकाराएं अपने पेशे का भरपूर दिफा करती नजर आती हैं। फाशी के खिलाफ मुहिम और पुलिस की जानिब से हिरासा करने का जिक्र भी इन्हीं वीडियो क्लिप्स में है। आफरीन कहती है कि कोई हमारे दुख नहीं जानता, हम अपनी मर्जी से इस शोबे में नहीं आए, मजबूर हुए तो रक्स करना कबूल किया, कोई हमें खाने को नहीं देता, लोगों का बस चले तो हमारे कपड़े क्या जिस्म नोच लें। उसके घर वालों ने मुझे नहीं रखना चाहा और मैं उसकी फैमिली में जाना चाहती थी, उसकी वजह से घर बर्बाद हो गया। मेरी बेटी है, वो अपने पापा के पास ही है, नहीं मिलने देते। पूछती हूँ लोगों से, खैर करिए, जब दिल होता है मिलने जाती हूँ, छुपा लेते हैं वो। कोई शौक से नहीं आते इस फील्ड में, मजबूरी काम करवाती है। दूसरी कहानी उज़्मा खान की है, जो मुल्तान से फरार होकर शादी करती है, लेकिन एक बेटी की पैदाइश के बाद शौहर अपनी बेटी को लेकर उसे छोड़कर चला जाता है। वो इमरान नामी ब्रोकर के हत्थे चढ़ जाती है। इमरान जैसे बेशुमार किरदार आपको मुल्तान और लाहौर में मिलेंगे। मुल्तान हमेशा की तरह आज भी फनकारों की फैक्ट्री है। यहाँ से रक्कासाएं तैयार होकर माजी में लाहौर फिल्म इंडस्ट्री के लिए रवाना की जाती थीं। अब फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही तो ये खाम माल स्टेज के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है।
उज़्मा स्टेज पर नहीं, अलबत्ता निजी महफिलों में मुजरे करके वही काम करती है जो आफरीन करती रही है। ढलती उम्र के साथ उज़्मा अब दीगर लड़कियों को भी मुजरा की महफिलों में ला रही है। इमरान ने जब महसूस किया कि अब उज़्मा उसके हाथ से निकल चुकी है तो उसने एक बार उसे गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। मेरे लिए ना बिल्कुल रिजेक्ट थी वो लड़कियां जो आपने दिखाई थी ना। अच्छा जी। हाँ वो नहीं, वो ना मॉडलिंग शूट में आ सकती हैं। वो तो बिल्कुल नहीं कर सकती। कशिश है और एक मैडम उज़्मा है। तो उज़्मा तो ओके है, मेरी तरफ से क्या हर किसी की तरफ से ओके है। उज़्मा को तो छोड़ दो आप। बैरून मुल्क जाते हुए उसके सामान में उसने मंशियात रख दी। उज़्मा अपने असरो रसूख से मंशियात बरामद होने के बावजूद बच गई। अपनी कहानी के इख्तिताम पर वो इमरान को धमकी देती है कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारा हश्र खराब कर दूंगी। बदमाशी हमसे शुरू होती है। तू वेखे ये मैनू राती के मैं किन्नी को हैगी इस मामले यार मेरी बात सुनो, मुझे तो बाद में पता चला मेरे पैसों से भी इसने 10,000 निकाला हो माँ। इस फिल्म में जा बजा ओरिजिनल गानों के वीडियो क्लिप्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जो अगरचे कहानी की हकीकत को उजागर करते हैं, लेकिन ये अमल शोगर्ल्स ऑफ पाकिस्तान को फैमिली फिल्म के लेबल से दूर करता है और सिर्फ बालगान के लिए का सर्टिफिकेट इसे दिया जाता है। मजमूई तौर पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है सिर्फ बालगान के लिए, वो भी जो शऊर रखते हैं। अब जिक्र फिल्म की आखिरी और तीसरी कहानी का। हाँ वो कह रहा था इसको मैं जाने नहीं दूंगा, एयरपोर्ट पे ही ना मैं इसके बैग में चर्च रखवाऊंगा, इसको वहीं छापा डलवाऊंगा और मैं देखता हूँ कैसे जाती है ये। चर्च तो रखवा दी, वो पकड़ी भी गई। चर्च रखवा दी? हाँ उसने रखवा दी, चर्च मिल भी गई। अब उसने ना वो सारा केस वगैरह मुझ पर डलवा दिया। अच्छा। उज़्मा ने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, फिर मैं थाने रह कर आया हूँ। तीसरी कहानी रीमा खान नामी ट्रांसजेंडर की है। स्टेज शायकीन की बहुत कम तादाद को इल्म है कि रीमा खान लड़की नहीं, वो फिल्मों में भी काम कर चुकी है। बैरून मुल्क भी उसकी धूम है। इस हिस्से में ट्रांसजेंडर की मजबूरियों और हालात की सितम ज़रीफ़ी को हल्के फुल्के अंदाज में नुमाया किया गया है कि किस तरह वालिदैन, ख़ानदान और रिश्तेदारों की नफ़रत उन्हें जहन्नम में धकेल देती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िमल, आपकी होस्ट, और मैं मौजूद हूँ 15 टीवी न्यूज़ चैनल में। और बताती चलूँ हमारे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत एट्रैक्टिव हमारी पाकिस्तान की टॉप रीमा जान। कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कब आई? आप तो गई हुई थी ओमान। जी बस कुछ ऐसा हुआ, मैं पाकिस्तान में आई हूँ और पाकिस्तान का प्यार नहीं भूल पा रही थी। इस हिस्से में ट्रांसजेंडर और एक नौजवान की मोहब्बत इंतहाई दिलचस्प दिखाई देती है। रीमा खान को स्टेज पर डांस करने पर उसकी ट्रांसजेंडर बिरादरी ने अलग कर दिया है। ढलती उम्र ने उसे मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के खौफ से दो चार किया तो रीमा खान अपनी बिरादरी में गुरु से माफ़ी मांग कर वापस आ गई। उसने वादा किया कि वो अब दोबारा स्टेज पर नहीं जाएगी। अब रीमा खान शादी ब्याह, सालगिरह, बच्चे की पैदाइश पर घरों गलियों में नाच गाकर रोजी रोटी का बंदोबस्त करती है। मस्कत में तो हम रूम में बंद पैक हो जाती है ना, बस उसी टाइम निकलती है जिस टाइम शो। फर्स्ट टाइम ही उन्होंने मेरे साथ बुरा हाल कर लिया था, मुझे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने फिर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। एक वेटर था, उसने खाने में मोबाइल को टेपों के साथ लपेटा, शॉपर में डाल के पुलिस को फ़ोन किया। आई एम पाकिस्तानी, रीमा जान, 2000 होटल, प्लीज़। जी दोस्तों, इन तीन कहानियों से ये नतीजा बरामद होता है कि स्टेज पर और महफिलों में मुजरा करने वाली इन फनकाराओं के मद्दाहों में आम दुकानदार, सरमायादार और एक मजदूर भी शामिल है। निजी महफिलों में और स्टेज पर ये सब इन फनकाराओं के साथ रक्स करते हैं और झूमते हैं, लेकिन मुआशरती बुराई के खात्मे की मुहिम शुरू हो तो यही शुरफा इन फनकाराओं के खिलाफ मीडिया पर और अवामी
महफिलों में बयानात देना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मुआशरे का वो पहलू है जिसे साद खान, आनम अब्बास और उनकी टीम ने फिल्म बंद करके कारनामा अंजाम दिया है। इसी तरह फिल्म के एडिटर जोई शरीकी की कारकर्दगी इंतहाई काबिल तारीफ करार दी जाए तो गलत ना होगा। फिल्म के सैकड़ों फिल्मबंद मनाजिर और इसके अलावा वीडियो क्लिप्स की एक बड़ी तादाद उन्होंने जिस मरबूत तरीके से उन्हें जोड़कर एक दिलचस्प फिल्म का रूप दिया वो एक कारनामा है। इस कदर मेहनत पर वो यकीनन काबिल तारीफ हैं। साथ उनके साद खान का नाम भी एडिटिंग में है, तो यूं साद खान इस फिल्म के हर शोबे में आपको नजर आते हैं, यानी कि वो फिल्मसाज भी हैं और कहानी नवीस भी, साथ में एडिटर भी। मैं उस टाइम काम करती थी जब लड़कियों को स्टेज पे काम करने की परमिशन नहीं थी। नरगिस, खुशबू, दीदार, मेगा, ये जितनी एक्टर्स थी ये मुझसे बाद में आई हैं। इस फिल्म की खास बात इसका कैमरा वर्क है। बेशुमार शॉट्स आनम अब्बास ने शानदार अंदाज में शूट किए हैं। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक खुशगवार हैरत है कि आनम अब्बास एक खातून हैं और उनके फिल्म के जाविये देख कर एहसास होता है कि उनका काम बैनुल अक़वामी तर्ज का है। साद खान ने बहैसियत डायरेक्टर जिस कदर मेहनत से उनसे काम लिया वो काबिल तारीफ है। जी मैं बोल रही हूँ रीमा जान, मैं एक टॉप स्टार सा स्टेज ड्रामे करदी सा, लक्की रानी सर्कस च काम करदी सा। एक लड़के मेरे नाल इश्क हो गया, उनदी खातर उनदे नाल मैं 16-17 साल कड्ढे ने। मैं उनदी खातर अपना फील्ड छड्डी, डांस छड्डिया, फंक्शन छड्डे, मेले छड्डे, दुनिया नूं छड्डिया, सब कुछ छड्डिया। अज मैं भी उस कंडीशन च कि मेरा दिमाग अपना नहीं है, मैनू कुछ होंदा है ते मेरा यार जिम्मेदार है उस्मान, ए बैठा जी। शोगर्ल्स ऑफ पाकिस्तान एक टीम वर्क है ऐसे नौजवानों का जो तफरी के जराए में मुआशरती खामियों को तलाश कर रहे हैं और उसे आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। इनकी हौसला अफजाई यूं भी जरूरी है कि आइंदा मजीद इन लोगों की जानिब से चौंका देने वाले प्रोजेक्ट आते रहें। उम्मीद है आप एक बार शोगर्ल्स ऑफ पाकिस्तान जरूर देखेंगे। अगली फिल्म तक के लिए यासीन हमीद को दें इजाजत।